وہ جو مومنین ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہیں ہو۔ اگر آپ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے تو آواز ہماری سب تک پہنچ جائے گی۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اگرچہ فرمایا وہ خود ضرورت مند کیوں نہیں، کسی چیز کا اس کو خود زیادہ ضرورت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ دوسرے آنے والے سائل کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو تکلیف نہیں ہے تو وہ فریش ہو کر جائے، ٹیک لگا کرنا بیٹھے، ٹھیک ہے، اس میں دین کی بیس ہے انسان کے لیے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مقدر کی بات ہے، فرمایا جس کو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، سبحان اللہ، دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، اللہ نے فرمایا یہ ہم ہی بچاتے ہیں، فرمایا جس کو دین کی تنگی سے بچا لیا گیا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا وہ فلاح پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جو دل کی تنگی ہے نا، دل کی تنگی ایک بہت بڑا عیب ہے، دل کی تنگی بہت بڑا عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کہ جتنے مسائل بھی آپ دیکھیں گے، جتنی پریشانیاں بھی دیکھیں گے، وہ ساری دل کی تنگی کی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو امیری کیا ہے، امیری غنا ہے، جو امیری ہے یہ فرمایا زیادہ مال ہونے سے نہیں آتی، زیادہ مال ہونے سے نہیں آتی، فرمایا یہ جو زیادہ امیری ہے یہ انسان کے دل سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کا امیر ہونا اصل امیر ہونا، سبحان اللہ۔ دل کا امیر ہونا اصل امیر ہونا، ویسے پیسوں کا امیر ہونا اصل امیر ہونا نہیں، تو یہ دل کا، اللہ نے فرمایا جس کو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، کنجوسی سے بچا لیا گیا، حضور مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت یہ بنیت الطالبین میں آپ نے اس واقعہ کو مطلب فرمایا، آپ فرماتے ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں دنیا میں سب سے ناپسند آدمی کون ہے؟ سب سے ناپسند، سب سے زیادہ تمہیں کس سے نفرت ہے، تمہیں سب سے زیادہ برا لگتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا جو نیک آدمی ہے، وہ فاسق آدمی ہے، جو فاسق آدمی ہے لیکن ساتھ سخاوت کرتا ہے، لیکن ساتھ سخاوت کرتا ہے فاسق لیکن کرتا کیا؟ سخاوت۔ اس سے پوچھا گیا تمہیں سب سے پسند کون ہے؟ سب سے پسند کون؟ اس نے کہا جو مومن ہے، سبحان اور اللہ۔ بخیل ہے۔ شیطان کیا کہنے لگا؟ مومن ہے، جو کہ مومن اور بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے مومن اور بخیل ہے تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا پسند مجھے اس لیے ہے کہ وہ مومن ہے، ساتھ اس کا دل بڑا کنجوس ہے، دل بڑا چھوٹا ہے اس کا، فرمایا اس چھوٹے دل کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس کا اینڈ جو ہونا ہے نا وہ خرابی پر ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل کی خرابی اس کو کسی نہ کسی وقت خراب جگہ پر لے جائے گی، اس وجہ سے مجھے اس کو پسند ہے۔ اور فرمایا وہ جو نفرت ہے جس بندے سے وہ اس فاسق و فاجر سے ہے جو دل کا سخی ہے، فرمایا اگرچہ وہ فاسق فاجر ہے لیکن دل کی سخاوت اس کو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخشی دینا۔ سبحان اللہ۔ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اگر جو فاسق فاجر ہے خدا نے اس کو بخش دینا۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، وہ اپنی ذات پر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ، دو سوال یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ تیرے نزدیک کون سے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے محبوب ترین لوگ کون سے اور اعمال میں سے سب سے بہترین عمل اللہ کے کون سے؟ سمجھ لگی؟ لوگوں میں سے سب سے محبوب لوگ اللہ کے یہاں کون ہے اور اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کو کون ہے؟ سب کو سمجھ لگی اس بات؟ ہاں تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ پتہ چل جائے؟ بے شک۔ دل کرتا ہے ہاں جی۔ انسان تو آپ
आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तो फरमाया अहब्बुन नास इलल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा जो महबूब लोग हैं वो हैं अनफ़अहुम लिन्नास, जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श हैं। अल्लाह अकबर। जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा ज़्यादा नफ़ा बख्श, लोगों को ज़्यादा नफ़ा देते हैं। जो लोगों को ज़्यादा नफ़ा देते हैं वो अल्लाह को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मखलूक सारी की सारी मेरा कुंबा है, मखलूक सारी की सारी मेरा कुंबा है। और जो खुदा के कुंबे से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको पसंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम सब अल्लाह से ज़्यादा महबूब होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला हमें लोगों में से ज़्यादा नफ़ा बख्शना चाहिए। आज उम्मत मुसलमान लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श नहीं रही, बेशक नफ़ा बख्श नहीं रही, इसलिए हम दुनिया में कहीं भी नजर भी नहीं आ रहा है। दुनिया में रहने का असूल ये है, हम बार बार कहते हैं अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया की जो इमामत का काम है, जो दुनिया में सुपरमेसी है या दुनिया में सुपर पावर बनने का या दुनिया को लीड करने का जो काम है, ये नमाजें पढ़ने से नहीं आएगा, ये आएगा जिसको दुनिया के तरीके अच्छी तरह आते हैं। और वो किसको आएगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श होगा अल्लाह ताला उसको ज़मीन पर कायम कर देगा। तो ज़मीन पर जिसको कायम किया जाएगा वो उसे कायम किया जाएगा जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होगा। देखें एक घर है ना, तो घर के अंदर फर्ज करें 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 10 बंदे, क्या उस घर के सरबराह बनाने के लिए घर में बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, खाना भी लाना पड़ेगा, घर के सारे मामला करने पड़ेंगे। अब जब घर के सरबराह चुनने की बारी आएगी तो क्या ये बात मेरे पास आएगी ये बंदा नमाजें कितनी पढ़ता है? नहीं। ये बंदा कितने दिनों से बुराके में, ये बंदा कितने दिनों से जिक्र अज़कार कर रहा है? नहीं, ये बात बिल्कुल मौज़ूए बात नहीं आएगी, बल्कि सबसे ज़्यादा जो मौज़ूए बात होगी कि इसको घर चलाने का तरीका मालूम है या नहीं मालूम, ये घर वालों को नफ़ा कितना दे सकता है, ये बिजली का बिल दे सकता है। ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है अल्लाह ताला उसको अपनी मखलूक पर हुक्मरानी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मखलूक के दिलों पर हुक्मरान बन जाएगा, मखलूक पर हुक्मरान बन जाएगा। अल्लाह पूरी दुनिया में उस मुसलमान को खड़ा कर देगा जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है। सुभान अल्लाह। आज मगरिब है, मगरिबी तहजीब है, वो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है। फ़ोन उन्होंने लोगों को दिया है, गाड़ियाँ उन्होंने लोगों को दिया है, तरह तरह की सहूलियात, हर तरह की सहूलियत वो लोगों को दे रहे हैं, वो नफ़ा बख्श हैं। अल्लाह ने दुनिया में उनकी हुकूमत कायम कर दी। आज अगर हम भी मुसलमान दोबारा चाहते हैं तो नफ़ा बख्श, आप भी दुकानें बनाएं, किसकी दुकान ज़्यादा चलेगी? बताएं ना, बोले ज़्यादा नफ़ा देगा, जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा देगा। नफ़ा बख्श होगा। हमारे मशाइख हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है, ये शायद इशाक साहब ने इसको नकल किया है और बड़े सूफिया ने इसको नकल किया है। हम अक्सर सूफिया के तकरीरों में सुनते भी हैं कि वो एक मुसलमान था, तो बड़े हमारे बुजुर्ग थे, तो उनकी दुकान थी, उनकी दुकान थी, लोग क्या करते थे उनको खोटे सिक्के भी दे जाते, क्या दे जाते थे? खोटे सिक्के, क्या दे जाते थे? खोटे सिक्के, उनको क्या दे जाते थे? खोटे सिक्के, खोटे सिक्के भी दे जाते थे, वो रख लेते थे, अल्लाह, जो भी आता रख लेते और उसको सौदा दे देते, सुभान अल्लाह। पूरे शहर में मशहूर हो गए यार, उस बंदे ने कोई नहीं पता लगता, हाँ जी, वो चला जाए आ गया, उन्हें कोई पता नहीं लगता। एक दिन बस वो नहीं आ सके, उनके बेटे दुकान पर, उनके बेटे दुकान पर, जो सिक्का भी आए खोटा हो, अल्लाह, जो सिक्का भी आए खोटा, वो खींच के मारे और साथ बेइज्जती भी करें, बदतमीज ना हो, हमने समझ लिया एक ही है, खोटा सिक्का दे देंगे, कोई शानी नहीं। एक से लड़ा, 2 से लड़ा, 3 से लड़ा, रात को अपने बाप से कहने लगा अब्बा जी आज मैं कहीं दाल नहीं लगे, लोग दाल आए, मैं ठीक ही थे। अल्लाह, उसने कहा मैंने सबको वापस कर दिया, लोग तो खोटे सिक्के लेके आ रहे थे। अल्लाह। आपने फरमाया कितना जुल्म किया, अल्लाह, कितना जुल्म किया तूने। उसने कहा अब्बा जी आपको भी दे जाते हैं, उसने कहा मुझे 10 साल के लोग दे रहे हैं, अल्लाह, अब्बा जी आप वापस क्यों नहीं करते? आपने फरमाया मैं इसलिए वापस नहीं करता कि अगर मेरे से ये वापस जाएंगे तो किसी और मुसलमान को धोखा देंगे, मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ ये मुझे धोखा दे लें कि ये इतने खोटे सिक्के हैं, मार्केट में जाने तो हैं ही, तो किसी और मुसलमान को धोखा होगा। मैं कहता हूँ ये मुझे धोखा हो जाए और मैं अल्लाह की बारगाह में कल को दरख्वास्त करूँ, ऐ अल्लाह जैसे मैं खोटे लेता रहा हूँ आज तू भी खोटा कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह खोटे अकबर, लेता रहा हूँ आज तू भी खोटा कबूल कर ले,
देखो हम जो बात कर रहे थे कि मखलूक की नफ़ा बख्शी, अगर आप अपनी दुकान इसलिए बनाएंगे, मार्केट में इसलिए जाएंगे कि हमने आका अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को नफ़ा बख्शी पैदा करनी है, तो आपका काम सबसे ज़्यादा चलेगा, बेशक। अल्लाह आपको कायम कर देगा वहाँ पर, आप बेशक। वहाँ हुक्मरान बन जाएंगे, पूरी बेशक। मार्केट आपके ज़रिए असर चलेगी। और हम क्या करते हैं, हम जितने मजहबी लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने दीन की समझ बूझ दी है, पगड़ियाँ दाढ़ियाँ, हम क्या होते हैं पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा सख्त हम होते हैं, मखलूक की नफ़ा बख्शी तो हमारे जहन में नहीं होती। बेशक। स्पेशल कहा जाता है वो फलां मौलवी बंदा ही उन्हें रेट बड़ा लाना है, हाँ मौलवी बंदा उन्हें रेट बड़ा लाना है, रेट तो खींच के लाएगा। तो फिर जिदों से हम जब हम नफ़ा बख्शी नहीं कर रहे, अल्लाह। मखलूक के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं अल्लाह की मखलूक को, तो अपने बच्चों का पर ज़िम्मेदार इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर कोई सही बनाता है। मेरे बच्चे हों तो मैं किसी के अच्छे बंदे के कस्टडी में देखूँगा, ऐसे ही मखलूक सारी की सारी अल्लाह के बच्चे तो नहीं है, मखलूक सारी की सारी खुदा की अयाल है। खुदा ने फरमाया मेरा कबीला है, तो खुदा अपने कबीले पर किसी नाअहल बंदे को खड़ा नहीं करता, नाअहल बंदे को खड़ा नहीं करता। हज़रत अली का फरमान, हज़रत अली फरमाया करते थे जालिम की हुक्मरानी कायम नहीं रह सकती, बेशक। जालिम की हुक्मरानी कायम नहीं रह सकते, काफिर की रह सकती है, काफिर की रह सकते। अगर आप नफ़ा बख्शें तो जो भी हैं खुदा आपको मखलूक पर हुक्मरानी दे देगा, लेकिन नफ़ा बख्शी नहीं है अगर कि मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते, नफ़ा पैदा नहीं कर सकते, तो खुदा को ज़रूरत है अपने करदा भी रोटी पूरी नहीं होती। बेशक। जब इंसान इतना सख्त हो जाता है ना और मखलूक के बारे में इतना संग दिल हो जाता है, फिर तो अपने घर की रोटी पूरी नहीं होती। तो इसलिए जो काम भी करें तो मखलूक के लिए नफ़ा बख्शी पर। सुभान अल्लाह। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, यकशिफुअन हो कुर्बतन, लोगों से तकलीफ़ें दूर करते हो, यक़दियन हो दैन, और लोगों का कर्ज अदा करते हो और उनसे भूख को दूर करते हो, तो फरमाया ये अल्लाह के यहाँ बड़ा महबूब, सुभान अल्लाह। बड़ा पसंद है, खुदा को बड़ा पसंद है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना पसंद है, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ये समझा हूँ कि ये जो काम करने हैं ना, मखलूक को खाना खिलाना, तकलीफ़ें दूर करना, उनकी तरफ से कर्ज देना, फरमाया ये मैं इस कदर समझा हूँ कि मुझे अगर किसी भाई की ज़रूरत के लिए कहीं जाना पड़े, अल्लाह। कल सुन के फरमाया अगर मुझे मखलूक की हाजत रवाई के लिए कहाँ जाना पड़े, फरमाया मैं उसके लिए जाऊँगा, ये मुझे उससे बेहतर लगता है कि मैं इस मस्जिद में यानी कि मस्जिद नबवी में एक महीना इत्काफ करूँ। हुज़ूर ने फरमाया मस्जिद नबवी में इसमें एक महीना एतकाफ करने से बेहतर मुझे ये लगता है कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई की तकलीफ दूर करने के लिए जाऊँ। सुभान अल्लाह। मखलूक के लिए नफ़ा बख्शी। बल्कि थोड़ी देर पहले हमें बड़ा अच्छा लगा था, हमारे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं मीडिया पे, वो एक बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे कि हम तो कहते हैं दर्जन 13 की होनी चाहिए, दर्जन 13 की बड़ी अच्छी लगती थी कि देन वाले दर्जन कितने की होनी चाहिए। अगर आप दुकान पे हैं, केले बेच रहे हैं, माल्टे बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, तो आपकी तरफ से दर्जन कितने की हो? 13 की होनी चाहिए, 12 की नहीं होनी चाहिए, 13 की हो। आप मखलूक से नफ़ा बख्शी वाला मामला करें। हुज़ूर क़िबला आलम बाज़ सुभान अल्लाह। उनकी कभी आप इसमें जो मतलब है, तो हम छोटे छोटे होते थे तो हम भी साथ बैठा करते थे, मतलब अच्छा अब वो मामला कहाँ से शुरू हुआ? अब आपने देखा होगा हुक्म आप बड़े बड़े बैठे हुए हैं और उनके पीछे बाप दादा के नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके कि ये फ़लाँ फ़लाँ फैमिली का जी, फ़लाँ फ़लाँ फैमिली का जी, इनका बाप इतना बड़ा आदमी था और दादा इतना बड़ा आदमी था, नस्ल दर नस्ल चलता है, लेकिन बंदा कोई नहीं है वहाँ। बंदा हम बचपन में देखते थे, अब्बा हुज़ूर क्या करते थे कि फ्री दवाई देते थे, अल्लाह। फ्री हुज़ूर क़िबला आलम फ्री दवाई देते थे। और अब भी क्या होता है, जो उनको पता होता है कि ये नीडी है, फ्री, जो को कह रहा है कि हमारे को ठीक है ले जाओ। अब हो क्या गया, अल्लाह ताला ने नफ़ा बख्शी, मतलब मरीज़ इतने लोग आ रहे हैं, नफ़ा बख्शी देखें कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों में फैज़ान जारी कर दिया। बेशक। मतलब फैज़ान इस तरह का जारी कर दिया कि एक बंदा आ रहा है, वो कह रहा है मैं इतना मरीज़ हूँ और वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि तुमने ठीक हो जाना है, वो वही ठीक हो जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा आप ये कहेंगे ये बहुत बड़ी करामत है, ये करामत है कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी नीयत में लोगों के लिए नफ़ा बख्शी है। सुभान अल्लाह। बेशक। बेशक। नीयत में लोगों के लिए नफ़ा बख्शी है। अल्लाह। वो छोटे भाई हैं मेरे, तो वो मतलब पर बैठे होते हैं, अब बुजुर्गों के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा मैं जब भी बुजुर्गों के पास जाता हूँ तो बुजुर्गों से समझा रहे होते हैं कि पुत्र मेरा मकसद कमाना नहीं, अल्लाह। पुत्र मेरा मकसद कमाना नहीं है, कि जिद्दन तुसी मकसद कमाना रखा उधर फैज़ उड़ गया। सुभान अल्लाह। तो ये फैज़ान है। तो फैज़ान कैसे आता है?
जब आपके दिमाग में नफा बख्शी, अल्लाह जब आपके दिमाग में नफा बख्शी है। जब आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत पर खड़े हैं, नफा बख्शी पर खड़े हैं, तो अल्लाह ताला आपका काम चला दे। समझ लगी है? जी अल्लाह को मखलूक से इतनी मोहब्बत है, पहले भी कई दफ़ा हमने हदीस सुनी है, मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बंदों को खड़ा करेगा और बंदों से कहेगा, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार था, मैं तूने मेरी इयादत नहीं की, तूने मेरी इयादत नहीं की। वो बंदा कहेगा, अल्लाह तू पाक है, तू कैसे बीमार है? अल्लाह कैसे अल्लाह बीमार हो? अल्लाह ताला फरमाता है, वो फलां फलां बंदा बीमार था, वो फलां फलां बंदा बीमार था, तू उसकी इयादत के लिए नहीं गया, अगर तू जाता तो तुझे वही सवाब मिलता जो तूने खुदा की इयादत की। सुभान फरमाया, अल्लाह। वो ऐसे ही था जैसे मैं तुम्हें सवाब देता, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाता। सुभान खुदा अल्लाह को मखलूक से इतनी मोहब्बत है, जैसे माँ नहीं कह रही होती, जैसे आप घर में मरीज हो, हम उसका पता लेने जाएं, उसके घर वाले कितने खुश होते हैं। बेशक खुदा मिसालों से पाक है, हमको ऐसी मिसाल खुदा के साथ दे नहीं सकते, लेकिन खुदा ने फरमाया मखलूक मेरा कुंबा और कबीला है, जो इसके साथ मोहब्बत करता है वो इतना ही हमारे करीब होता है। बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम, अल्लाह मैं भूखा था, मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तो अल्लाह। मुझे पानी नहीं। वो फिर वही कहेगा, अल्लाह तो कैसे हो सकता है? अल्लाह फिर फरमाएगा, वो फुला बंदा भूखा और प्यासा था, तुमने उसके पास जाके उसको पानी पिलाते तो ऐसा ही था जैसे मुझे पानी पिलाते, सुभान अल्लाह। उसको खिलाते तो ऐसे था जैसे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनिhi। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि जब तक बंदा किसी बंदे की खिदमत में लगा रहता है, मैं उसकी खिदमत में लगा रहता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह समझ लगी? सुभान अल्लाह समझ लगी है ना? हाँ जी, हाँ जी। जिसके अपने काम अच्छी तरह ना हो, उसको हर वक्त बच्चों की फिक्र है, घर की फिक्र है, परेशान है, तो ये शिकायत कर रहा है कि मैं आगे को जाता हूँ, मेरे हाथ पीछे को आते हैं, मेरे मामला बिजनेस के ठीक नहीं है, तो वो बड़ी खूबसूरत बात है, वो दीन की टेंशन लेना शुरू कर दे। जब वो दीन की टेंशन लेना शुरू कर दे, वो खुदा उसके कामों की टेंशन ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा, फरमाया उसके काम तो मैं कर। हमें लगी है हाँ जी तो ये गम है, ये ना होगा तो कोई और तो होगा। हाँ, दिल गमों से खाली तो नहीं, दिल गमों से खाली तो नहीं। कोई ना कोई काम तो हर वक्त रहना ही, हाँ जी। तो बेहतर नहीं आपको अच्छा काम पालनी? अल्लाह बेहतर है ना बेशक या नहीं? बेहतर 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 कोई अच्छा काम पाल लें। बेशक तो जब आप अच्छा काम पाल लेंगे तो ये दुनिया का काम निकल जाएगा, ये दुनिया का काम निकल जाएगा। वरना दिल गमों से खाली कोई नहीं। हमें लगती आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजा अनहु कुर्बतन मिन कुर्बात यौमिल क़ियामह। सुभान जो बंदों की दुनिया की कोई मुश्किल दूर करता है, अल्लाह उसकी आखिरत की कोई मुश्किल दूर करता है, सुभान अल्लाह क़यामत की कोई मुश्किल दूर कर देगा। अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए चंद कदम चलता है, चंद कदम चलता है मुश्किल है, आपके पास कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है कि मैं तकलीफ में हूँ, परेशानी है, तो आप फ़ौरन उसको लेके निकलें। वो कहता है मैंने बुजुर्गों से मिलना, फ़ौरन लेके निकलें, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करें, आप अपने कामों को आगे ना आगे। अल्लाह ताला हमने बोला जब आप अल्लाह की लिए निकलेंगे तो अल्लाह आपके काम। हमारे बड़े ये भाई हैं जो आसपास भट्टी साहब यहाँ पे आज नहीं आए, खुद बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था जब वो अभी बैत नहीं हुए थे, अल्लाह तो कहते हैं मैं बड़ा परेशान था, उनके फैमिली को मसला बन गया, वही मसला उनका बुजुर्गों के पास आने की भी वजह बन गई। बेशक तो वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान था, तो एक दिन मुझे पता चला, तो मैंने आना था यहाँ दरबार शरीफ बुजुर्गों के पास, तो कहते हैं कि लारे आसंदू साहब हमारी गली में ही थे, मैंने आके उनसे अर्ज़ किया कि मैंने पूछा कि जाना, वो कहने लगे अभी चलें। सुभान अल्लाह। हाँ, वो कहने लगे अभी चलें। तो मुझे इतनी उनकी बात सुन के हैरानगी होती है ना कि यार एक बंदा कहता है कि चलो जी मैं काम से प्लान कर लेने हैं, परसों चल जाने हैं, ये लगन है, ये लगन है। अल्लाह ताला ये लगन हम सबको दे, भाइयों उनकी बरकतों से ये काम चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनका आना शब रोज़ यहाँ पे रखे आमीन और अल्लाह ताला इनके सदक़े से हमारी इस बात को अच्छा, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या ये अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں۔ یہ بھی خدمت خلق ہے، ہمیں لگی ہے نا ہاں جی خدمت خلق